Hello students, welcome again to Sanal Harris Engineering Academy. Here we are going to solve the question related to Fourier transform. First two questions already we had solved. अभी third question solve करते हैं. So what has been given? देखो ध्यान से read करो. Find Fourier integral transform representation of f of x1 0 is been given, but sine transform use करना है या cos transform use करना है, that we don't know. So what I told you in basic is whenever mod of x is there, its meaning is what? Its meaning is what, students? Whenever mod of x is there, it is sine transform. आपको use क्या करना है? Sine transform use करना है, right? So first of all we will start with a step by step procedure. So सबसे पहले तो step number 1 लिख लेते हैं. In step number 1 what we are going to do? We are going to write down the function as it is function लिख लेते हैं. So let f of x equals to 1 mod of x less than equals to 1, similarly 0 mod of x greater than what, students? Greater than 1 है. Okay, तो सबसे पहले तो step wise you have to go. Step number 1 में ये लिखिए. Step number 2, in step number 2 what you are going to do? You are going to write down the formula. So here we are going to use which transform? Sine transform. So using Fourier. ओके अब ये साइन है क्या cos है. ओके सो विल यूज योर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बिकॉज जो मॉड ऑफ x है स्टूडेंट दैट इज योर इवन फंक्शन प्लस है ना. मॉड ऑफ x मींस प्लस मींस हियर वी हैव टू यूज कोसाइन फॉर्मूला. सो कोसाइन का फॉर्मूला क्या है? fc ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी. ओके इट इज 0 टू इंफिनिटी. हियर वी विल राइट डाउन f ऑफ u एंड देन यू विल राइट du और यहाँ पर क्या रहा? Cos of lambda u. Okay, so fc of lambda equals to 0 to infinity f of u into cos lambda u into du. This is the formula. Perfect. Then next we are going to write down step number 3. Step number 3 में सब values put करो. Here we will see what is the actual meaning of evaluate. Evaluate का actual meaning क्या है? That we will see after solving this step 3. Okay. So fc of lambda equals to, चलो ठीक है. So how many part it is been divided? It is been divided into two parts. एक है 1 और second है 0. So whenever x is less than 1, less than 2 ऐसा अगर रहा so आपको जो लिमिट रहेगा, जो लोअर लिमिट रहेगा that will be always 0. ये बात याद रखो. अगर x less than equals to some value है, 1 है, 2 है, okay. So there what we have to do? Here we have to write lower limit as 0, upper limit 1 लिखिए. Now what you will put f of u as? F of u क्या put करोगे? 1 put करोगे. 1 into cos lambda u into du. Are you getting this point? Plus उसके बाद क्या? x is greater than 1. Okay, greater किधर तक जा सकता है? वो infinity तक जा सकता है. f of u what you are going to replace? You are going to replace f of u as 0 into what is remaining? Cos lambda u into du. Perfect. So ये whole term, ये जो whole term है students, that whole term is going to become what? Is going to become 0 here. Perfect. So now fc of lambda equals to what is left? 0 to 1. 1 into cos lambda means क्या हुआ? Cos lambda u ही हो गया into du. और कुछ टर्म है? और कोई टर्म है स्टूडेंट्स? नहीं है. ग्रेट. सो fc ऑफ लैम्डा. ओके fc ऑफ लैम्डा का वैल्यू बोलिए. cos लैम्डा u का इंटीग्रेशन क्या है? cos का इंटीग्रेशन साइन. सो साइन लैम्डा u अपॉन u के साथ लैम्डा है. भाई u के साथ ही क्यों देखे? बिकॉज डेरिवेटिव इधर देखो, डेरिवेटिव ऑफ u है. लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 1. सो द नेक्स्ट फॉर्मूला हियर इज व्हाट? The next term here that we are going to write is what? fc of lambda. Okay, fc of lambda equals to what, students? Equals to, सबसे पहले तो क्या करना है? सबसे पहले 1 पुट करो. u के जगह पर 1 पुट करो और फिर u के जगह पर 0 पुट करो. सो अपर लिमिट में जब 1 पुट करूंगा सो फॉर्मूला सिर्फ क्या रहेगा? साइन लैम्डा अपॉन लैम्डा. जब मैं 0 पुट करूंगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है.
So here we will write down sine lambda upon lambda. Are you understanding this? Sine lambda upon lambda. So this is okay, this is the value of what, student? This is the value of fc of lambda. ठीक है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म तो हमने फाइंड किया है, इट वाज इजी टू फाइंड, सिर्फ एक ही इंटीग्रेशन था, दैट वाज आल्सो वेरी इजी. Perfect. So next what we have to do here is, next what we have to do, evaluate पूछा है. So whenever evaluate, whenever show that is been asked, whenever evaluate, whenever show that is been asked, students, you have to do what? You have to find out inverse. आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? इनवर्स. कभी भी अगर क्वेश्चन में इवेल्युएट रहा या फिर शो दैट रहा, then you are going to use what? Inverse. So R, step number 4. Step number 3 तो हो गया है, ठीक है. So step number 4 I will write here, students. Step number 4 क्या है? To find out inverse Fourier cosine transform, है ना. So I will use here inverse Fourier cosine transform. So I will write here using inverse Fourier cosine transform. Fourier cosine transform. I hope that you are understanding it. Inverse Fourier cosine transform यूज कीजिए. So फॉर्मूला क्या है? f of x, f of x, what I told you, क्या लिखना है यहाँ पर? 2 by pi इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रेशन 0 to infinity रहेगा. Are you getting this point? इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 0 to infinity. So I will write down here किसका करना है ट्रांसफॉर्म? कोसाइन का. So I will write here fc of lambda. fc of lambda means here will be d of lambda, students. Okay, यहाँ पर रहेगा d of lambda, and as cos is there, I will write down cos lambda x. Cos lambda x. Perfect, perfect. I hope that you are understanding. This is the formula. This is the formula for what? फॉर्मूला फॉर इनवर्स. ये इनवर्स का फॉर्मूला है, इनवर्स फूरियर कोसाइन का ये फॉर्मूला है. सो नाउ वी विल कीप ऑन डूइंग दिस. सो 2 by pi. देखो जनरली आपको एक बात बताता हूं, व्हेनेवर यू आर यूजिंग इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, व्हेनेवर यू आर यूजिंग योर इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. सो घबराना नहीं है, आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, आपको सॉल्व करना नहीं है. ओके, परफेक्ट. सो ये fc ऑफ लैम्डा क्या है? fc of lambda क्या है, students? Okay, what is fc of lambda here? It is nothing but sin lambda upon lambda into क्या हुआ? cos lambda x into d of lambda. ये 2 by pi, यहाँ पर जाके क्या हो गया? pi by 2. So I will write here pi by 2. f of x equals to what, students? Equals to हो गया 0 to infinity sin of lambda into cos lambda x whole upon lambda d of lambda. Okay, so let us see whether this is correct or not. देखिए यहाँ पर what we have to evaluate, we have to show sin lambda into cos lambda x upon lambda d of lambda. हो गया प्रूफ, परफेक्ट. बट आगे देखो, आगे क्या प्रूफ करना है? एंड sin lambda upon lambda we have to prove here, और एक प्रूविंग बाकी है, राइट? और एक प्रूविंग बाकी है, ठीक है. सो इफ यू विल सी दिस, इफ यू विल सी द क्वेश्चन, इफ यू विल रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, स्टूडेंट्स, साइन लैम्डा मतलब cos लैम्डा x की वैल्यू 1 हो गई है, तो cos लैम्डा x की वैल्यू 1 कब होगी? व्हेन योर लैम्डा वैल्यू इज 0. जब cos 0 आप पुट करोगे, cos 0 इज व्हाट? cos 0 इज 1. ओके, सो व्हाट आई विल डू हियर इन दिस इक्वेशन, ये जो अबव इक्वेशन है, आई विल सब्स्टिट्यूट. मैं क्या करूंगा? सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो आई विल राइट हियर पुट x इक्वल्स टू 0. आर यू अंडरस्टैंडिंग हियर? x क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, स्टूडेंट्स? 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा. सो पाई बाय 2 f ऑफ x, ओके, RHS में सब्स्टिट्यूट करो. 0 टू इंफिनिटी साइन ऑफ लैम्डा इंटू, देखो अभी x के जगह पर 0 पुट किए तो लैम्डा इंटू 0 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1. सो सिर्फ बचा क्या? साइन लैम्डा इंटू d ऑफ लैम्डा.
Are you understanding this? देखो भाई, sin lambda upon lambda. Are you understanding? So this is the question here. I will zoom out here. Okay, so you can take a screenshot of it. I hope that you're understanding it very properly. कभी भी अगर evaluate दिया है, show that दिया है, you have to use inverse. You have to use what, students? Inverse. Perfect. So let us move on to the next question. ये question भी important question है, पिछले बार भी पूछा गया था. Okay, sin lambda x, f of x sin lambda x dx equals to 1 minus lambda 0 to 1 दिया हुआ है, right? No, perfect. So now most important, ध्यान दो यहाँ पर, what is coming here, students? What is coming here? X दिखा आपको, x दिखा. So whenever x is been there, it is inverse Fourier question. Inverse Fourier का question रहेगा whenever x is been there. So I will write here f of x. Okay, so f of x लिख लेता हूँ सबसे पहले. So before that I will write down step number 1. Step number 1 क्या है? Step number 1 is what, students? Let f of x, okay, f of x into sin lambda x, as it is equation लिख लो, as it is equation लिख लो, 0 to infinity. First step बहुत simple, as it is equation लिखना है, इंटीग्रेशन 1 माइनस लैम्डा, ये 0 लेस देन ये लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 1. लैम्डा इज ग्रेटर देन व्हाट, स्टूडेंट्स? लैम्डा इज ग्रेटर देन 1. I hope that you are understanding this very properly, students. Perfect. Okay, so जो next point है, what is the next point here, students? Step number 2 we are going to write down. Step number 2 लिखिए. Step number 2, now as sign is been mentioned here, LHS में आपको sign दिख रहा है, so whenever sign is been there, I will use Fourier sign, but Fourier sign नहीं, inverse Fourier we have to use here. So I will write here using inverse Fourier cosine transform. ओके, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या है? बोलिए, उसका फॉर्मूला क्या है? एफ एस ऑफ टी है ना, मतलब एफ एस ऑफ लैम्डा जो है, आई विल राइट डाउन लाइक दिस, एफ एस ऑफ लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, है ना, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, स्टूडेंट्स? क्या रहेगा? ओके, या फिर एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट वी विल राइट डाउन द मेन फॉर्मूला, f of x equals to 2 by pi, right? This is the formula. क्या है formula? 2 by pi integration of 0 से infinity. Okay, sorry, I have written here cosine transform, actual है sine, so कोई बात नहीं. Perfect guys. So 2 by pi 0 to infinity fs of lambda, fs लिख लीजिए, fs of lambda means यहाँ पर d of lambda, so sin s, so sin lambda x. Are you understanding this? क्या है? sin lambda x. Perfect. Now we will start with step number 3. Step number 3 बोलिए क्या है? To divide the equation. Divide करना पड़ेगा equation को. Okay, divide करना पड़ेगा equation को. Therefore what you will have here, students? Therefore what you will have? So f of x equals to, right, f of x equals to 2 by pi. So first limit क्या है? 0 to 1. first limit है 0 to what, students? 0 to 1 है first limit, ठीक है, no problem. So first of all I will write down 0 to 1. okay, and then we will have here fs क्या है? 1 minus lambda. What will be here? Sin lambda x into d of lambda, plus आगे का तो 0 ही हो जाएगा. क्यों 0? because here we have written as what, friends? Here we have written as 0.
Perfect. I hope that you're understanding it very properly. So f of x क्या हुआ? F of x ये 2 by pi. Okay, this 2 by pi you can keep here or you can keep on LHS also. मैं RHS में ही रखता हूँ. 2 by pi 0 to 1 minus lambda into sine lambda x into d of lambda. So how you are going to integrate कैसे करोगे? इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे स्टूडेंट्स? ओके, दिस इज यूवी रूल कैसे समझाए? देखो ये है एक एल्जेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. यूवी रूल आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. करेक्ट, यूवी रूल मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है फूरियर ट्रांसफॉर्म के. ठीक है, सो वहां से देख लेना. सो 2 बाय पाई इंटीग्रेशन यू एज इट इज रखो, 1 माइनस लैम्डा एज इट इज रखो. नाउ यू शुड बी वेरी केयरफुल. अभी v का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू d ऑफ लैम्डा. सो साइन का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस कॉस लैम्डा x. बट अभी यहां पर d ऑफ लैम्डा है. सो लैम्डा के साथ कौन सी वैल्यू है? लैम्डा के साथ कौन सी वैल्यू है बताओ? लैम्डा के साथ कौन सी वैल्यू है? x वैल्यू है. सो डिवाइडेड बाय व्हाट आई विल राइट हियर? आई विल राइट हियर द वैल्यू ऑफ x. परफेक्ट. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये वैल्यू ऑफ x लिख लेता हूं मैं. उसके बाद माइनस, ठीक है, डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, लैम्डा का 1 रहेगा. ठीक है भाई. कॉस का इंटीग्रेशन साइन. सो ये हो गया साइन लैम्डा x अपॉन x. और ये x क्या हुआ स्टूडेंट्स? x का स्क्वायर. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. फिर से एक बार बताता हूं. 1 माइनस लैम्डा एज इट इज लिखो. साइन लैम्डा x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? साइन का माइनस कॉस रहता है. सो माइनस कॉस लैम्डा x. लैम्डा के साथ x है, सो डिवाइड बाय x करो. 1 माइनस लैम्डा का डेरिवेटिव क्या हुआ? 1 का डेरिवेटिव 0 और लैम्डा का हुआ 1. सो 0 माइनस 1, ये माइनस एज इट इज लिखो. कॉस का क्या हुआ? साइन लैम्डा x अपॉन x स्क्वायर. परफेक्ट. लिमिट्स क्या है भाई? लिमिट 0 to 1 है. तुरंत लिमिट्स पुट मत करो, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, व्हाट डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट. सिंप्लीफाई करिए. सो 1 माइनस लैम्डा माइनस कॉस लैम्डा x अपॉन x. ये 0 माइनस 1 क्या हुआ? -1. माइनस और ये माइनस प्लस और ये माइनस हो गया. 1 इंटू दिस होल टर्म. We will only write down like this, sin lambda x upon x square. I hope you are understanding. माइनस प्लस हुआ, प्लस के बाद फिर से वो माइनस हो गया. ओके, नाउ आई विल पुट डाउन द लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. बट ध्यान दो, लोअर लिमिट फिर से अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. बिकॉज अगर ये 0 है, इसका मतलब पूरा 0 नहीं हुआ. यहाँ पे cos 0 है, cos 0 1 रहता है. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. बट नाउ द मेन थिंग इज कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है. x से सब्स्टिट्यूट करना है या लैम्डा से सब्स्टिट्यूट करना है. सो डेरिवेटिव किस रिस्पेक्ट से आपने फाइंड किया? डेरिवेटिव आपने फाइंड किया लैम्डा के रिस्पेक्ट से. आपने फाइंड किया स्टूडेंट्स लैम्डा के रिस्पेक्ट से. ओके, लैम्डा के रिस्पेक्ट से आपने फाइंड किए हैं. फाइन. सो जहां पर लैम्डा रहेगा स्टूडेंट्स, जहां पर लैम्डा रहेगा वहां पर 1 पुट करो और उसके बाद 0 पुट करो. चलो ठीक है भाई. 2 बाय पाई, सबसे पहले 2 बाय पाई क्या करो? कॉमन बाहर ही रहने दो. ठीक है. लैम्डा इंस्टेड ऑफ लैम्डा पुट 1 पुट करिए. सो 1 माइनस 1 0. यहां पर अगर लैम्डा को 1 पुट किया, 1 माइनस 1 0. सो होल वैल्यू क्या हुआ? ये होल वैल्यू हो गया 0. सो यहाँ पर 0 लिखो. 0 माइनस, ठीक है, 1 पुट करो, लैम्डा 1 पुट करो. साइन 1 इंटू एक्स, साइन एक्स. सो यहाँ पर रहा साइन एक्स अपॉन व्हाट गाइस? अपॉन एक्स स्क्वायर. ये हो गया आपका अपर लिमिट. माइनस लोअर लिमिट. अभी लोअर लिमिट पुट करिए. लोअर लिमिट पुट करो स्टूडेंट्स. ओके, परफेक्ट. लोअर लिमिट में 0 पुट करो. 1 माइनस 0 1 रहता है. 1 इंटू, अभी देखो यहाँ पर x है, स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ पर लैम्डा है, लैम्डा 0 पुट करो. 0 इंटू एक्स 0, cos 0 1 रहता है. cos 0 क्या रहता है? 1. सो आई विल राइट डाउन हियर माइनस, यहाँ का माइनस. ओके, माइनस
cos 0 1, so ये टोटल टर्म क्या हुआ 1 हो गया, so I will write down 1 upon x, I will write down what students 1 upon x, perfect, माइनस 0 पुट करो लैम्डा की जगह पर 0, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, साइन 0 हो गया 0, so ये होल टर्म हुआ 0. दिस विल बी लोअर लिमिट, इफ नॉट अंडरस्टूड फिर से रिप्ले करके देखो भाई, लोअर लिमिट है ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए है, एंड एट द एंड व्हाट इज रिमेनिंग हियर 2 बाय पाई, क्या है रिमेनिंग, तो 0 माइनस विल बी माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 1 अपॉन एक्स, हमेशा रिस्पेक्ट पॉजिटिव टर्म को देना है, पॉजिटिव टर्म को देना है रिस्पेक्ट. सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 upon x, then I will write down here, minus sin x upon x square. You can keep till here or else you can cross multiply भी कर सकते हो और आंसर भी फाइंड कर सकते हो, and hence we had find out the answer of f of x. देखिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है स्टूडेंट्स. सो f of x equals to 2 by pi 1 by x minus sin x upon x square. Okay, so you can take a screenshot of this very properly. सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर था d of lambda, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा आपको करना था, परफेक्ट. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लेट अस सी. फिफ्थ क्वेश्चन क्या है. ओके, अब तक से तो 2 टर्म्स के हम कर रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डील विथ 3 टर्म्स रहेगा, राइट. परफेक्ट. f of x into sin lambda x dx equals to 0 lambda 1. Okay, let us see how to solve this question. We'll solve this question again very properly. बढ़िया से बढ़िया solve करते हैं. Again what you are seeing here is lambda x आप देख रहे हो. So x means what, we are going to use your inverse Fourier transform. आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट. परफेक्ट. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर स्टेप नंबर 1. ओके, सो व्हाट इज स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 क्या है, राइट डाउन द इक्वेशन एज इट इज. अगेन आई विल राइट डाउन द इक्वेशन 0 to infinity f of x into sin of lambda x d of lambda equals to, ये पूरा के पूरे टर्म्स लिख लो, 0 lambda 1 2 1 lambda 2 0 lambda 2. Great. Step number 2, which transform you are going to use, sin transform. क्यों भाई sin transform आप क्यों यूज करोगे, क्योंकि sin lambda x दिया है भाई, sin दिया है तो sin ही तो यूज करना पड़ेगा, ठीक है. So here I will I will write down using inverse Fourier sin transform. इनवर्स फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म हमें यूज करना है स्टूडेंट्स, ठीक. परफेक्ट. सो व्हाट वी विल डू हियर इज, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू राइट डाउन f of x इक्वल्स टू, बेसिक फॉर्मूला लिख लो, 0 to infinity 2 by pi, क्या लिखो 2 by pi. ओके, 2 by pi आप बाहर भी लिख सकते हो या फिर अंदर भी, ठीक है, कोई बात नहीं. सो जैसे हम कर रहे थे वैसे ही कर लेते. सो 2 by pi फर्स्ट आई विल राइट डाउन एंड देन आई विल राइट डाउन 0 to infinity साइन ट्रांसफॉर्म, इसलिए fs of lambda, lambda है इसलिए d of lambda एंड साइन इज देयर, सो आई विल यूज योर साइन ऑफ lambda x. साइन ऑफ क्या यूज करोगा, साइन ऑफ lambda x यूज करोगा स्टूडेंट्स. ओके, परफेक्ट. देन योर स्टेप नंबर 3 बोलिए क्या है. स्टेप नंबर 3 is we have to divide into again 3 parts, but 3 parts में डिवाइड करने की जरूरत नहीं क्योंकि एक पार्ट तो 0 है, so no need to write, उसका आंसर 0 ही रहेगा.
ठीक. सो आई विल राइट डाउन हियर f ऑफ x, आई विल राइट डाउन f ऑफ x इक्वल्स टू, परफेक्ट. सो सबसे पहले तो 1 पुट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट हियर 1, और उसका इंटीग्रेशन देखो स्टूडेंट्स 2 बाय पाई है. सो 2 बाय पाई ऐसे ही रहने दो. 0 to 1. ओके, सो एफ एस ऑफ लैम्डा में आप क्या पुट करोगे? 0. सो 0 इंटू साइन लैम्डा एक्स. 0 है क्या 1 है भाई? 1 है ना, क्या बात है. सो राइट डाउन 1 एफ ऑफ एस इज 1 साइन लैम्डा एक्स इंटू डी ऑफ लैम्डा. ठीक है, ये हो गया 1. उसके बाद सेकेंड कौन सा टर्म है? देखो 2 टर्म है. सो लिमिट क्या है? 1 से लेकर 2 तक. सो लोअर लिमिट विल बी 1, अपर लिमिट विल बी 2. ओके, और उसका एफ एस ऑफ लैम्डा क्या है? 2 है. सो 2 इंटू साइन ऑफ लैम्डा एक्स इंटू डी ऑफ लैम्डा. ओके, डी ऑफ लैम्डा है स्टूडेंट. सो हियर ऑल्सो आई विल चेंज इट टू डी ऑफ लैम्डा. ठीक है भाई, डी ऑफ लैम्डा, क्या बात है. दिस इज द इक्वेशन. ओके, सो अभी आपको इक्वेशन ये सॉल्व करना पड़ेगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 बाय पाई, परफेक्ट, 2 बाय पाई साइन लैम्डा एक्स इंटू डी ऑफ लैम्डा. ठीक है, साइन लैम्डा एक्स इंटू डी ऑफ लैम्डा का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन बताइए क्या है? माइनस कॉस लैम्डा एक्स अपॉन डी ऑफ लैम्डा है. सो लैम्डा के साथ कौन सी वैल्यू है? लैम्डा के साथ एक्स वैल्यू है. ग्रेट. सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करो. इसका लिमिट रहेगा 0 to 1. 2 बाय पाई सबको कॉमन है, सो बिगर ब्रैकेट प्लस 2. Okay, 2 as it is. I will write here 2 as it is. ठीक है. साइन लैम्डा एक्स का क्या? माइनस. आई विल राइट हियर माइनस कॉस लैम्डा एक्स. ओके, लैम्डा के साथ में क्या है? एक्स है स्टूडेंट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और उसका लिमिट हो गया 1 to 2. उसका लिमिट हो गया 1 to 2. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी प्रॉपरली. ग्रेट, गुड. सो यहां पर लिखो 2 बाय पाई लिख लीजिए. देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट हियर एन अपर लोअर लिमिट. देखो भाई, फर्स्ट अभी लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे या एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे? आप लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे. क्यों लैम्डा सब्स्टिट्यूट करोगे? बिकॉज डी इज विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा. D is with respect to what students? Lambda here. Okay, so I will write here first of all lambda की वैल्यू 1 पुट कीजिए. सो लोअर लिमिट जो है ये था आपका लोअर लिमिट, राइट. सो लोअर लिमिट विल बी व्हाट? माइनस कॉस लैम्डा की वैल्यू 1. सो 1 इंटू एक्स हो गया कॉस लैम्डा एक्स. ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करो. 0 इंटू एक्स हो गया 0, कॉस 0 हो गया 1. सो ये माइनस वन अपॉन एक्स. ये तो सिर्फ हुआ स्टूडेंट्स, ये तो सिर्फ हुआ ये टर्म के लिए, है ना. अपर लिमिट लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कीजिए. माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, माइनस ऑफ माइनस. सो फिर x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट कीजिए. सो आपका आंसर 1 आ जाएगा. प्लस सेम हियर 2 को बाहर डाल दीजिए. ठीक है, सो इट विल बिकम ए बिगर इक्वेशन. here. So plus minus 2 को बाहर डाल दो जरा. For time being I will do this. ठीक है. अपर लिमिट, ओके, लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करो? 2 पुट करो. लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करो. सो क्या हुआ आंसर? 2 cos 2x अपॉन x. आर यू अंडरस्टैंडिंग? लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करो? लैम्डा की वैल्यू 2 पुट करो. तो उसका आंसर हो गया 2x. अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट. अभी लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कीजिए, बट यहाँ पे भी माइनस है. फिर से ब्रैकेट दो, माइनस नहीं चाहिए. 2 cos x अपॉन x. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग. देखो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है ये टर्म के लिए, ये अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है ये टर्म के लिए. प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. 2 बाय पाई. नाउ व्हाट वी विल डू? वी विल सिंप्लीफाई इट. सो क्या आया? माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स आया.
माइनस माइनस प्लस हुआ, सो प्लस 1/x माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए माइनस 2 cos 2x अपॉन x, क्या बात है, माइनस माइनस हुआ प्लस, प्लस माइनस हुआ फिर से माइनस, सो दिस विल बी माइनस 2 cos x अपॉन x. I hope that you are understanding. Okay, so ये जो माइनस की टर्म है ये हो गया प्लस. एक्चुअली वाई स्टूडेंट्स, बिकॉज अपर लिमिट तो है बट आप जब लोअर लिमिट पुट करोगे, राइट, व्हेन यू आर पुटिंग ये लोअर लिमिट, ये प्लस है ना, ये बीच में का साइन प्लस है, सो ये हो गया प्लस और ये माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल बी प्लस. सो यहां पर भी प्लस 2 cos x है स्टूडेंट्स, ठीक है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, लोअर लिमिट और यहाँ पे माइनस है, सो दिस टर्म विल बी माइनस. परफेक्ट. सो प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस माइनस हुआ माइनस, माइनस माइनस प्लस, परफेक्ट. चलो कोई बात नहीं. अभी 2 cos x प्लस 2 cos x माइनस cos x बाय x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, उसकी वैल्यू हुई है cos x. 2 cos x माइनस x विल बी सिर्फ और सिर्फ cos x रहा. सो यहां पर लिख लो माइनस cos x अपॉन x प्लस 1/x माइनस 2 और ये 2 कैंसल हुआ, ठीक है, कैंसल हो गया. सो इट विल बी ओनली लेफ्ट विथ व्हाट, इट विल बी ओनली लेफ्ट विथ cos 2x रहा. ठीक है, ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, स्टूडेंट्स? ओके. और यहाँ पर एक्चुअली वो x है ना, यहाँ पर x है एंड यहाँ पर फिर 2 रहेगा, राइट नो स्टूडेंट. सो यहाँ पर x है. So this will be the whole value of this. So I hope that you are understanding this very properly. So एक बार फिर से देख लेते हैं किधर गड़बड़ हो गया भाई. So cos x तो सही है, 2 cos 2x अपॉन x था, ओके अपॉन x था, ये कोई गल नहीं, कोई चिंता नहीं. सो यहाँ पर x लीजिए. सो 2 cos 2x तो वैसे का वैसे रहेगा भाई. कट क्यों किए, कट तो नहीं करना है, क्या बात है सर. सो 2 cos माइनस cos x प्लस पूरा टर्म में इरेज करता हूं, ठीक है सर, कोई बात नहीं रे, गलती तो होती है, गलती से सीखते हैं इंसान. सो माइनस cos x अपॉन x प्लस 1/x, परफेक्ट. और ये माइनस 2 cos 2x अपॉन x, x सेम है भाई, x सेम है. सो यू विल राइट योर, सबसे पहले रिस्पेक्ट दो पॉजिटिव टर्म को. सो 1 माइनस cos x माइनस 2 cos 2x whole upon x. This is the answer of what, dear students? What is this answer? This is the answer of f of x. Are you understanding? बहुत सही जा रहे हो. Okay, patience रखो, सब हो जाएगा. This is the fifth question. This was the fifth question, that was find Fourier integral representation. क्या बात है. Okay, so I hope that you are understanding this question. If you have gained some knowledge, like the video and share to your friend. Subscribe तो जरूर कीजिए. चलो, thank you so much dear students, thank you so much.